The story of Ahmedabad was no different from that of any other fast-growing city in the country. अहमदाबाद में हर साल 4 लाख से भी ज्यादा व्हीकल ऐड हो रहे हैं। रास्ते उतने हिसाब से बढ़ नहीं रहे। वो समय कभी नहीं भूल सकता जब पॉल्यूशन अहमदाबाद की पहचान थी। कैरोसिन पर रिक्शा चलते थे और घर से निकलने का मन भी नहीं करता था। As a heavily polluted city with roads choked with vehicles, there was a time when the residents of Ahmedabad suffered every day. The public transport system was highly ineffective and the traffic problem was left unchecked. In 2006, the BJP-led government took a strong step to solve this ever-increasing problem. A revolutionary new public transport system was born. The Janmarg. Based on the concept of equitable distribution of road space, the bus rapid transit system is a specially allocated corridor within the existing road network that allows right-of-way to thousands of people who do not own a personal vehicle. पुणे में बीआरटीएस का बुरा हाल है। यहाँ पर ये ऐसी जगह पे बनाया गया है जहाँ पर पहले से ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। A bad failure in almost all other states. The Janmarg under BJP-ruled Gujarat shines as the most successful BRTS system in India. Making Ahmedabad a clean and green city, the BRTS is a symbol of clear success through various distinct efforts made by the BJP government. A fully equipped bus workshop provides necessary training to the personnel and an exclusive docking ground for maintenance of the buses. For affordability and comfort, the public was given an obvious choice. Janmarg is also India's first bus transport service offering highly economical smart cards. Today only at ₹3, I can proudly say that Ahmedabad BRTS is the most cheapest and comfortable way of commuting in whole country. The success of such a new system not only depends upon a purely public-centric approach, but the most important point is to gradually train the people to accept the system and its long-term benefits. Achieving a modal shift of 52% passengers moving to public transport, the Janmarg is hence considered the most successful BRT system in the whole world. यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ और गुजरात के लोग मुझे बहुत पसंद है। गुजरात अहमदाबाद इतना खूबसूरत हो गया है, सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, ये मॉल इतना खूबसूरत है। मुंबई में ऐसा मॉल देखने को मिलता नहीं है। आप लोगों की प्रोग्रेस इतनी अच्छी है जो देख के हमको बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने जो सोलर पार्क है उसमें एक सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सोलर हमेशा से मैं सोलर में बिलीव करता हूँ। मेरे घर में, मेरे फार्म में, हर जगह बहुत सालों से मैंने सोलर लगाया हुआ है। तो जब ये प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा तो हमको लगा कि हमें करना चाहिए। और जो पॉलिसीज यहाँ की है वो इतनी ज़्यादा क्लियर थी कि बिजनेस करने के लिए भी आपकी पॉलिसीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ मोदी साहब ने जो पॉलिसीज रखी थी वो इतनी ज़्यादा क्लियर रखी थी और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो वक्त से पहले किया। ही इज़ वेरी प्रो इंडस्ट्री, तो इट्स वेरी कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस हियर। आई थिंक मुझे लगता है इसलिए बाकी लोग भी यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं।
Friends, as this is the first occasion on which all of us are here to celebrate Narendra Bhai's leadership, his third time chief ministership, may I request and take this opportunity of requesting each one of you to give Narendra Bhai a standing ovation. Thank you. जनता दरबार की दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दिल्ली में केजरीवाल के जनता दरबार की हालत, जहां पर ख्योस था। पटना में नीतीश कुमार के जनता दरबार की तस्वीरें आपको देखी, आपने लोगों का गुस्सा देखा। एक तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से जनता दरबार लगा रहे हैं और हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने उनके इस दरबार का जायजा लिया। कैसे नरेंद्र मोदी जनता के शिकायतों का निपटारा करते हैं और वहां हंगामा क्यों नहीं होता, ये देखिए। ये गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जनता दरबार की तस्वीरें हैं। मोदी के सामने जनता है, लोग बैठे हैं, कुछ खड़े भी हैं, लेकिन मोदी सबकी बात शालीनता से सुन रहे हैं। सामने एक टीवी स्क्रीन लगा है जिसमें गुजरात सरकार के बड़े पुलिस अफसर और अधिकारी बैठे हैं। मोदी लोगों की बातें सुनते हैं और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अफसरों से शिकायत के समाधान को लेकर बात करते हैं। मोदी के जनता दरबार में बिना किसी परेशानी के लोगों की समस्या का निपटारा होता दिखाई देता है। गुजरात में मोदी का जनता दरबार दरअसल एक हेल्पलाइन सेवा है जो पिछले 10 साल से चली आ रही है। इसका नाम है स्वागत ऑनलाइन, यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आसान शब्दों में कहें तो पूरे राज्य के लोगों की शिकायत का तकनीक के जरिए निवारण। ये सेवा अप्रैल 2003 में शुरू की गई थी। स्वागत ऑनलाइन पर कोई भी शख्स नेट के जरिए अपनी शिकायत भेज सकता है। हेल्पलाइन के अधिकारी इसे देखते हैं और फिर संबंधित विभाग में भेजते हैं। खास बात यह है कि जब तक समस्या सुलझती नहीं तब तक शिकायतों को सीएम ऑफिस खुद फॉलो करता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति खुद ऑफिस आकर शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर समस्या गंभीर है तो इसके निपटारे के लिए खुद मोदी शामिल होते हैं। मोदी हर महीने के चौथे गुरुवार को खुद ऑनलाइन बैठते हैं और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्याओं को खुद निपटाते हैं। इसके लिए गुजरात के सभी जिलों के कलेक्टर, डीडीओ और डीएसपी भी ऑनलाइन मौजूद होते हैं। मोदी के स्वागत ऑनलाइन से कई लोग समस्या का समाधान पाकर ही लौटते हैं। पत्र लिखते हैं या कुछ रजूआत करते हैं तो वहाँ से हमें तुरंत कोई जवाब नहीं मिलता या वो फाइल है ऊपर चली जाती है। मगर यहाँ कहीं पे भी आएंगे तो उसी रेफरेंस से फिर हम दूसरी बार भी उनके लिए फरियाद रीओपन भी करा सकते हैं और हमें पूरा संतोष है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारा हर एक चीज़ सुना जाता है। अब लोगों की सहूलियत के लिए स्वागत को 4 स्तरों पर बांट दिया गया है। स्टेट स्वागत, जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं। जिला स्वागत, इसमें कलेक्टर लोगों की शिकायत पर गौर करते हैं। तालुका स्वागत में तहसील स्तर पर लोगों की समस्या तहसीलदार सुनते हैं, जबकि ग्राम स्वागत में गांव के सरपंच मामलों का निपटारा कर सकते हैं। गुजरात सरकार के सभी ऑफिसर्स को मालूम है कि मुख्यमंत्री जी खुद हर एक की शिकायत सुनते हैं, उनकी पेपर्स पढ़ते हैं और चर्चा करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ऊपर गवर्नमेंट में सचिव तक को आदेश देके उनका काम करवाते हैं। पिछले 10 साल में अब तक इस हेल्पलाइन में 3,27,134 शिकायतें आईं, जिसमें से 3,02,601 शिकायतों का निवारण किया गया, यानी 92% से ज्यादा केसों का निपटारा। इस हेल्पलाइन पर राशन कार्ड में देरी से लेकर घरेलू हिंसा और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार तक की किसी भी तरह की शिकायत दर्ज की जा सकती है। सभी की बात सुनी जाती है, उनका समाधान होता है, लेकिन कभी कोई हंगामा नहीं होता। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गांधीनगर। मेरा जो ये स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसने गरीब से गरीब आदमी को ऐसे एम्पावर किया है। कोई गरीब आदमी फटे कपड़े हो, गंदे कपड़े हो, खेत से आया हो और सरकारी दफ्तर में जाएगा तो आप जानते हो क्या होता होगा। इधर जाओ, उधर जाओ, इधर नहीं ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, यही होता है ना। हम सबको मालूम है यही होता है। मित्रों, आज ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के कारण गांव का गरीब आदमी भी आज गुजरात में मामलतदार के पास जाके खड़ा हो जाता है, कलेक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है और अगर वो सुनवाई नहीं करता है तो तुरंत कहता है, साहब ठीक है, मत सुनो, मैं ऑनलाइन जाता हूं।
जैसा ही वो बोलता है जब ऑनलाइन जाता हूँ वो कलेक्टर खड़ा हो जाता है, अरे बैठे बैठे। The way he works for Gujarat, it is, I think, he's the best person for Gujarat. What he has done for Gujarat, I don't think so anybody has ever done it. And I have met him personally twice, and I must salute you, and I must call yourself all the people of Gujarat very lucky to be under his rule. And I think he's a great person. He's a great human being. And you're very lucky, that's all. This was followed by the formulation of Solar Power Policy 2009 by the state and signing of power purchase agreements PPAs with 80 companies for 960 megawatts of solar power generation. Today, with more than 600 megawatts of installed solar power generation capacity, Gujarat can well be termed as the solar capital of India. Of the many spectacular feats by the state in solar energy sector, the most resounding achievement accomplished in the shortest possible time frame is the Gujarat Solar Park at Charanka, Asia's largest, first of its kind, multi-facility and multi-beneficiary solar park. Today, the park is already generating 214 megawatts of clean, green energy, and when fully commissioned, the project will generate 500 megawatts of solar power. Encouraged by the success of the Phase 1, the government has already initiated work on Phase 2 and 3 of the solar park. In addition to power generation, the park will also feature manufacturing units for solar PV cells and ancillary equipment, R&D facilities, skill development and vocational training centers, and in the process create large-scale employment opportunities for the local populace and lead to significant reduction in cost of solar power. Besides the Gujarat Solar Park, there are several other locations at which private companies, in partnership with the government, have established solar projects generating almost 400 megawatts of solar power. भारत में अनेक नेताओं को जनता ने चाहा और सराहा है, पर जो लोकप्रियता मोदी को मिली है वो कई मायने में अभूतपूर्व है। मोदी पहले ऐसे नेता हैं जिनकी हर एक बात को देश की युवा पीढ़ी आत्मसात करने की कोशिश करती है। उनकी एक एक रैली में कई लाख लोगों की मौजूदगी, उनकी एक हुंकार पर जनता की जय जयकार जनसाधारण में उनके बढ़ते हुए प्रभाव की परिचायक है। गुजरात को उन्होंने एक डेवलपमेंट के मामले में मॉडल स्टेट के रूप में लाकर इसे हिंदुस्तान में खड़ा करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे नरेंद्र भाई ने वह कामयाबी हासिल की है। मोदी को हर वर्ग, हर समुदाय और हर उम्र के लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि सबके पास मोदी को चाहने के अपने अपने कारण हैं। देश का हर नागरिक आज मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहता है और विकास के उस सफर को मंजिल तक पहुंचाना चाहता है।